Hello everyone. So in this video we are going to start the discussion of straight line exercise 1. Straight line exercise 1 का discussion करेंगे. So let's start with question number 1. First question is, if 3 comma minus 4 and minus 6 comma 5 are the extremities of a diagonal of a parallelogram and 2 comma 1 is the third vertex, then its fourth vertex is. तो अगर मैंने parallelogram बनाया, so given to me is the एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायगोनल. तो बोल देते हैं कि ये डायगोनल के एक्सट्रीमिटीज पता है, मतलब कोऑर्डिनेट्स 3 comma minus 4 and this has to be 6 minus 6 comma 5. ओके, एंड क्या दे रखा है, इट्स थर्ड वर्टेक्सेस. ठीक है, सो थर्ड वर्टेक्स मतलब ये कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज गिवन टू अस 2 comma 1 and we are supposed to find the fourth vertex. ठीक है, so let's say this is the fourth vertex h comma k we are supposed to find. Now अगर हम इसको नाम दें a b c and let's say d and this diagonal intersection को हमने o बोल दिया. Now we know that diagonals of a parallelogram bisect each other. ठीक है, so if diagonals of a parallelogram bisect each other, तो o is midpoint of AC. So using the midpoint formula from the section formula हम o के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं. o coordinates will be x1 plus x2 by 2, so 3 minus 6 by 2 and minus 4 plus 5 by 2, that is equal to 3 minus 6 is minus 3 by 2 and 1 by 2. o के कोऑर्डिनेट है. now o is also midpoint of bd क्योंकि bd is also the diagonals bisect each other, so o is midpoint of bd as well. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा कि o के कोऑर्डिनेट्स जो है दैट इज -3 by 2 1 by 2 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए, दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू o के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ b एंड d लिख सकते हैं, दैट इज h plus 2 by 2 मिडपॉइंट फार्मूला अगेन and k plus 1 by 2. फाइन, तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे तो वी वुड गेट द रिक्वायर्ड आंसर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -3 by 2 is equals to h plus 2 by 2 and x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर रहे हैं, सेम है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, and 1 by 2 is equals to k plus 1 by 2. So from here we would get h, that would be h is equals to -5 and k is equal to -1. So therefore fourth vertex के coordinates कितने बनेंगे, fourth vertex has the coordinate -5 comma k should be equal to 0, -1 कहाँ से आएगा, 1 है इधर तो it should be 0, -5 comma 0. This is my answer. Now moving to the second question. Second question says the ratio in which the line joining the points 3 comma -4 and -5 comma 6 is divided by the x-axis. ठीक है, तो ये हमारी लाइन है, this is 3 comma -4 let's say one coordinate and the other coordinate is -5 comma 6. ये लाइन को x एक्सिस किस रेशियो में कट कर रही है, सो x एक्सिस का मतलब लेट्स से दिस इज माय x एक्सिस. ठीक है, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज हैविंग द कोऑर्डिनेट एज h, 0. x एक्सिस है तो एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस विल हैव कोऑर्डिनेट h, 0. दिस इज माय x एक्सिस. डोंट गो बाय द फिगर कि x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, कोई बात नहीं, समझने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं. सो रेशियो निकालना है, सो इन सच क्वेश्चन हम क्या करते हैं, रेशियो को अज्यूम कर लेते हैं. सो लेट्स अज्यूम द रेशियो इज k:1. ठीक है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B ले लेते हैं, दिस इज लेट्स से C पॉइंट. सो मैंने बोल दिया कि द रेशियो इज k:1, तो अब हम C के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला. सो कोऑर्डिनेट ऑफ C दैट इज h, 0 विल बी इक्वल यूजिंग सेक्शन फार्मूला दिस k into -5 x कोऑर्डिनेट, सो -5k, then plus 1 into 3, so plus 3 upon k plus 1, and then k into 6 that is 6k and 1 into -4, so -4 divided by k plus 1. फाइन, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट तो 0 है, x एक्सिस लाइन बोला है, तो y कोऑर्डिनेट को यहाँ से इक्वेट कर देते हैं, सो दिस विल बी 0 इक्वल टू 6k - 4 upon k plus 1. So from here I get the required value of k as 4 upon 6, which is nothing but 2 upon 3. So therefore the ratio is k:1. तो हम k की वैल्यू 2/3 देख रहे हैं, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
whatever is the denominator, so the required ratio is 2:3, and that should be my answer. Then next question, question number 3. Question number 3 में क्या लिखा हुआ है? The circumcenter of the triangle with vertices 0, 0, 3, 0 and 0, 1. Now what is circumcenter? Circumcenter is the point of intersection of perpendicular bisectors of the sides of the triangle. Okay. तो अगर हम coordinates को देखेंगे तो coordinates given are in very easy form. In the sense एक तो origin दिख रहा है 0, 0, ठीक है. दूसरा coordinate कौन सा है? 3, 0, तो यहाँ का ही होगा. And third coordinate is 0, 1. तो दिख रहा है हमें कि it is talking about a right angle triangle. ठीक है, ये 90 डिग्री का है. So these are the 3 vertices. इनको join करूंगा तो एक right angle triangle बनेगा. And circumcenter का मतलब center of the circle which is circumscribing this triangle. वो इस तरह से कुछ होगा. This is the circle. Let's see. Don't go by the figure. हाँ. तो in this case हमें पता है कि ये angle 90 डिग्री है. So this line, इसको अगर मैं A, इसको B बोल दूँ, so AB is diameter of that circle. AB is diameter, right? Diameter होना पड़ेगा because angle in a semicircle is 90 degree. और right angle triangle के केस में you can remember कि जो midpoint of hypotenuse होता है that is the circumcenter. So midpoint, let's say C. So C is nothing but midpoint of AB and which is the required circumcenter of the triangle. ठीक है. So हम C के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. C coordinates will be equal x1 plus x2 by 2, so 3 by 2 and 4 by 2, so that is equal to 3 by 2 and 2. That should be the answer. 3 by 2 and then 4th. Question number 4 में क्या दे रखा है? The midpoints of the sides of a triangle are 5, 0, 5, 12 and 0, 12. Then the orthocenter of this triangle. Okay, तो हमें क्या निकालना है? Orthocenter. So अगर हम ट्रायंगल को देखेंगे, so the triangle is इस तरह का ट्रायंगल मान लेते हैं. ठीक है, हमें मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे. ओके, तो सबसे पहले वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे. तो मान लेते हैं A, B, C आर दी वर्टाइसेस. A is let's say x1 y1, B is x2 y2 and C is x3 y3. ठीक है, हमें क्या गिवन है? We have been given the mid points के कोऑर्डिनेट. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो 5, 0. So let's say this is 5, 0 which is mid point. ठीक है, फिर next is 5, 12. Let's say this is 5, 12 and इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 0, 12. Now using this mid point हम A, B, C के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. How can we do that? See, हमें पता है कि 5, 12 is midpoint of AB. तो मैं using midpoint formula x कोऑर्डिनेट के लिए लिख सकता हूँ x1 plus x2 by 2. This is equal to 5, the x coordinate. ठीक है. Similarly, this 5, 0 is midpoint of BC. तो मैं लिख सकता हूँ x2 plus x3 by 2 is equal to 5 again. And I can write x1 because 0, 12 is midpoint. So x1 plus x3 by 2 is equals to 0 because x coordinate is 0 over here. So यहाँ से मुझे मिल रहा है x1 plus x2 is equal to 10. यहाँ से मिल जाएगा x2 plus x3 is equals to 10 and यहाँ से मिल जाएगा x1 plus x3 is equal to 0. अब क्या करो, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करो. ठीक है, क्यों ऐड कर रहे हैं अभी समझ में आएगा. हमारा पर्पस क्या है? x1, x2, x3 आ जाए, क्योंकि हमें ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ठीक है, तो उसके लिए वर्टाइसेस की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो अब मैं अगर तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में सब दो बार लिखा हुआ है. सो x1 plus x2 plus x3. This has to be equal to 20 आ गया. अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि x1 plus x2 plus x3 this is equal to 10. इसको नाम देता हूँ चौथा इक्वेशन. अब क्या करो कि फोर्थ इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो. क्या मिलेगा? 4 - 1 करोगे तो x3 मिलेगा एंड दैट हैज टू बी 0. ऑब्जर्व, 10 - 10 0 हो जाएगा और x1 x2 कैंसिल होंगे, बचेगा x3. उसी तरह से अगर मैं
4 माइनस इक्वेशन 2 करता हूँ तो क्या मिलेगा, 4 माइनस 2 विल गिव मी x1 इक्वल टू 0, क्योंकि x2 x3 कैंसिल हो जाएगा। देन अगर मैं 4 माइनस 3 करता हूँ, सो दिस विल गिव मी x1 x3 कैंसिल होगा, x2 इक्वल टू 10 आएगा, बिकॉज यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। सो x2 इज इक्वल टू 10, तो x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलर प्रोसीजर से हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ y1 प्लस y2 बाई 2, ये किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है, दिस इज 12। देन y2 प्लस y3 विल बी इक्वल टू, that is y2 plus y3 using midpoint formula from section formula, this is equals to 0, and y1 plus y3, this divided by 2 is equal to how much, this is equal to 12 again, ठीक है, 12 की इक्वल again। now तो यहाँ से तुम निकाल लो y1 plus y2 is how much, 24, and then this will imply y2 plus y3 is equals to 0, and this will imply y1 plus y3 is equals to 20। दिस इज बेसिकली मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है, जब मिड पॉइंट्स गिवन है तो वर्टिसेस इसी तरह से निकाल सकते हो। सो अगेन 5 6 7, तो 5 प्लस 6 प्लस 7 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू हाउ मच, 48, विच इम्प्लाइज y1 plus y2 plus y3 is equal to 24। अब क्या करो, मैं इधर ही कैलकुलेशन कर देता हूँ, दैट दिस इज लेट्स से 8th इक्वेशन, तो 8 माइनस 5 कर लो, कैलकुलेशन इज नॉट दैट कम्बरसम, ठीक है, इजी कैलकुलेशन। 8 माइनस 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y3 मिलेगा विच इज 0, फिर तुम 8 माइनस 6 करोगे तो तुम्हें मिलेगा y1 विच इज इक्वल टू 24, फिर तुम 8 minus 7 करोगे तो you would get y2 which is equal to 0। अब हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, therefore a के कोऑर्डिनेट कितना है, x1 y1, so x1 0, y1 is 24, 0,24। फिर b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x2 y2, so that is 10,0, and then finally c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3 is 0, y3 is 0, so 0,0। so this is very easy now। अगर तुम इसको प्लॉट करोगे ट्रायंगल को तो इस तरह का ट्रायंगल बन जाए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ओरिजिन यहाँ पे c पॉइंट 0,0, b is over here 10,0, and c is over here, sorry a is over here 0,24। तो जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल दे रखा है क्वेश्चन में वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल है, सो दिस इज माय ऑर्थो सेंटर, therefore ortho center is 0,0, so this should be my answer, okay। Then question number 5 says area of a triangle whose vertices are given is, so how do we write area of a triangle, area of a triangle हम using determinant form लिखते हैं, so area of triangle this is equal to 1 by 2, then determinant of x1 x2 x3 y1 y2 y3, so x1 लिख लेते हैं formula, then this is y1 y2 y3 1 1 1 and modulus of this, ठीक है, modulus होता है because area cannot be negative, so this is modulus, so this area of triangle is equal to, कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट x1 कितना है, a cos थीटा, देन y1 कितना है, b sin थीटा, देन x1 कितना है, माइनस a sin थीटा, एंड दिस इज b cos थीटा, देन 1, एंड x3 कितना है, माइनस a cos थीटा, कोऑर्डिनेट्स तुम देख सकते हो जो गिवन क्वेश्चन में है, एंड माइनस b sin थीटा एंड 1। अब इसको ओपन अप कर दो, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 by 2, कैसे ओपन करोगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो आता ही है, a cos थीटा इनटू b cos थीटा एंड माइनस माइनस प्लस b sin थीटा, सो b cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, चलो लिख के देता हूँ,
यहाँ पे माइनस आता है एंड दिस इज माइनस बी साइन थीटा. ओके, देन माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा होगा ये. ये कितना लिखा हुआ है, ए साइन थीटा, ए साइन बी साइन थीटा, सो दैट हैज टू बी ए बी साइन स्क्वायर थीटा. ओके, एंड माइनस 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 अभी प्लस लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, दैट हैज टू बी ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा. एंड फाइनली प्लस 1 इनटू, आई थिंक मैंने गलत कर दिया, दिस इज रॉन्ग, जस्ट अ मिनट. ठीक है, जब हमने माइनस बी साइन थीटा लिखा तो ये ए साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, बिकॉज करस्पॉन्डिंग टू बी साइन थीटा हम रो को हाइड करेंगे, कॉलम को हाइड करेंगे. सो दिस इज माइनस ए साइन थीटा एंड देन माइनस माइनस विल बी प्लस ए कॉस थीटा. ठीक है, देन प्लस 1 इनटू, यहाँ पे आएगा वो जो हम वहां लिख रहे थे, ए बी साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा. Okay, modulus of this. So this is now equal to half of, calculation is just यहाँ पे आ जाएगा ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, देन प्लस ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस, प्लस ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, देन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा and this is minus AB sin theta cos theta. ठीक है, प्लस यहाँ पे AB sin square एंड AB cos square लिखा हुआ है, AB कॉमन लोगे तो sin square प्लस cos square बचेगा which is 1, तो यहाँ पे AB आ जाएगा. ठीक है, दिस इज इक्वल. अब देखो यहाँ पे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, माइनस AB sin theta प्लस AB cos theta sin theta, ये कैंसिल हो गया. ठीक है, and this will be creating AB, so that is half of ए बी, इन दोनों टर्म्स को मिला के, एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक ए बी है, तो ए बी प्लस ए बी इज 2ab, 2 कैंसिल, फाइनली वी गेट आंसर एज ए बी. मॉडुलस का जरूरत नहीं बिकॉज वी गॉट पॉजिटिव. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5th. देन 6th क्वेश्चन. द पॉइंट A divides the join of the points -5, 1 and 3, 5 in the ratio k is to 1, and the coordinates of point B and C are this. If the area of triangle be 2 units, then okay, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं. दिस इज A, so A is dividing the join of, ये लिख लेते हैं, join of क्या था ये, -5, 1 and 3, 5 in the ratio k is to 1. ठीक है, तो ये जो पॉइंट A है वो इस लाइन सेगमेंट को k is to 1 में डिवाइड कर रहा है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड C आर, तो इसको B बोल देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1, 5, दिस इज 7, -2, C पॉइंट. इस ट्रायंगल का एरिया गिवन है, तो k की वैल्यू निकालनी है. ओके, तो सबसे पहले अभी हमें समझ में आ गया कि एरिया दे रखा है तो वो फॉर्मूला यूज होगा एरिया वाला डिटरमिनेंट में. ठीक है, एंड अब A के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो A के कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A यूजिंग सेक्शन फार्मूला, 3k प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, 1 into -5 is -5 upon k plus 1. देन यहाँ पे आ जाएगा 5k plus 1 upon k plus 1. ठीक है, ये आ गए A के कोऑर्डिनेट्स. अब ये A के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, this is given to us as equal to 2 units. तो आई थिंक कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम एरिया लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखो तुम डिटरमिनेंट में लिखते हो, सो विदाउट यूजिंग डिटरमिनेंट भी मैं लिख सकता हूँ. कैसे, मैं लिख लेता हूँ, 3 वर्टाइसेस है, तीनों के वर्टाइसेस लिख लो. जैसे 1, 5 लिखा, फिर मैंने लिखा 7, -2, एंड देन आई एम राइटिंग थर्ड वर्टेक्स 3k -5 upon k plus 1 and 5k plus 1 upon k plus 1. अब जो तुमने सबसे पहले वर्टेक्स लिखा था यहाँ पे, उसी को फिर से लिख लो 1 and 5. ठीक है, लिख लिया. ओके, अब क्या करो, इसको एरिया लिखना है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज इक्वल वही हाफ
अब मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, जो डिटरमिनेंट के बाद वाला स्टेप होता है ना, जब तुम डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, वो स्टेप मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलो। सो स्टेयर मेथड बोलते हैं इसको, 1 into -2 and 7 into 5। सो 1 into -2 -7 into 5, ये फर्स्ट टर्म हो गया। देन प्लस ये 7 into 5k plus 1 upon k plus 1 and minus 2 into this, so minus plus 2 into 3k minus 5 upon k plus 1। ठीक है, ये आ गया। देन ये k plus 1 है, ठीक है। देन प्लस, सब प्लस में लिखेंगे ना, तो आई थिंक ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। सो दिस इज डिफरेंट। अब क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो दैट हैज टू बी 5 into 3k minus 5 upon k plus 1 minus 1 into 5k plus 1 upon k plus 1। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तुम डिटरमिनेंट को एक्सपांड करके लिखोगे, यू विल गेट एक्जैक्टली सेम थिंग, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये तो वर्टिकल लाइंस मॉडुलस साइन को शो कर, सो दिस इज 2 इज इक्वल्स टू, अब सिंप्लीफाई करो इसको, सो 1/2 को एज इट इज रहने देते हैं, -2 and -35 दैट इज -37। देन प्लस, यहाँ पे सब जगह k plus 1 कॉमन है, तो आई थिंक मैं डायरेक्टली लिखना शुरू करता हूँ, 35k plus 1 plus 6k minus plus 7 आएगा, सॉरी plus 7, because 7 से मल्टीप्लाई हुआ, 6k minus 10, then plus 15k minus 25, यहाँ आएगा minus 5k minus 1। दिस इज कैलकुलेशन पार्ट, जो मैं थोड़ा जल्दी कर, ठीक है। So this is modulus obviously, so this implies 2 को उधर भेज देंगे तो 4 हो जाएगा, this is equal to k plus 1 को एलसीएम ले लेते हैं, so this is -37k -37, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय k plus 1 आएगा। अब यहाँ मॉडुलस साइन है, और यहाँ पे देखो 35 plus 6 41, 41 plus 41 आ गया, और 15 minus 5 10, तो 41 plus 10 is 51k, so this is 51k। 7 minus 10 is -3, -3 and -25 is -28, -1 is -29। ये आ गया, इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत, छोटा कर दिया इसको। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं आगे, सो दिस इज 4k plus 4 is equal to modulus of 51 minus 37, that has to be 14k, minus 37 minus 29, so this has to be minus 16, or 3 to 5 or 1 6, this is what we get। अब इसको मॉडुलस है, तो अभी इसको लिख सकते हैं 4k plus 4 is equals to 14k minus 66, और 4k plus 4 is equal to minus times 14k minus 66, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 14, ये आ जाएगा -10k इज इक्वल टू -70, तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू 7, और 4k plus 4 is equal to -14k plus 66, so this implies 18k is equal to 62, so this implies k is equal to 31 by 62 अपॉन 18 किया, तो 2 से कैंसिल करके 9 आ जाएगा। सो आई थिंक मेरी कैलकुलेशन सही हुई है, एंड दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ के। आंसर 31 by 9 and 7, यस, ऑप्शन तो दिख रहा है, इट हैज टू बी करेक्ट। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, इफ a b c are the vertices of a triangle then as alpha varies locus of its centroid, centroid का locus पूछा, ठीक है। a is cos alpha sin alpha, ठीक है, b is what sin alpha minus cos alpha and c is what 1, 2। now centroid को मैं g बोल देता हूँ। सेंट्रॉइड किस तरह से लिखते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन एज x1 plus x2 plus x3 by 3, so this is equal to, ठीक है। अच्छा, हमें सेंट्रॉइड के लोकस निकालना है, तो सबसे पहले सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है, तो उसको बोलना पड़ेगा h, k।
and then this g h comma k is x1 plus x2 plus x3 by 3. So cos alpha plus sin alpha plus 1 by 3 x coordinate, y coordinate, sin alpha minus cos alpha plus 2. So this is sin alpha minus cos alpha plus 2 divided by 3. So this gives me, ये h comma k लिखा हुआ है, so यहाँ से आ जाएगा h is equal to cos alpha plus sin alpha plus 1 by 3 and k is equal to sin alpha minus cos alpha plus 2 by 3. Now alpha is a parameter होगा, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, अल्फा वेरी करना है ना, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा टू गेट एन रिलेशन इन h and k which will be the locus. तो आई थिंक इजीली आ जाएगा, दिस शुड बी 3h minus 1 is equals to cos alpha plus sin alpha. एक रिलेशन तो ये आ गया और दूसरा यहाँ से आ जाएगा 3k minus 2 is equals to sin alpha minus cos alpha. अब क्या करो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया. स्क्वायर करके ऐड कर क्यों किया मैंने, मुझे अल्फा को रिमूव करना है, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. देखो ये करने से मिलेगा 3h minus 1 का होल स्क्वायर देन प्लस 3k minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर जो इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है एंड प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर. दिस इज जस्ट कैलकुलेशन नाउ. तो यहाँ से आ जाएगा 9h स्क्वायर, ठीक है, देन माइनस 6h प्लस 1 प्लस 9k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख लेता हूँ यहाँ, एंड यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज अगेन 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा. अब तुम देख रहे हो कि ये कैंसिल है, ये मुझे पहले दिख गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो दैट इज अ हिंट कि स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो अल्फा गायब, ठीक है. तो यहाँ से अभी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 12k 1 plus 4 is 5, 5 minus 2 is 3, so plus 3 equal to 0. 3 से डिवाइड मार दो उसको, so this is 3h square. I think h 3 से डिवाइड भी कर देते और h और k को x से y से रिप्लेस कर देते. So this is 3x square plus 3y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0. So this is the required answer for the locus. मैच कर सकते हो, दिस इज व्हाट यू शुड गेट. 7th हो गया. देन लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट्स 2a 3a, ठीक है, आर कोलिनियर. तो कोलिनियर पॉइंट्स है तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म शुड बी 0 बाय दीस कोऑर्डिनेट्स. उसी का यूज कर लेते हैं, 3b 2b, बेस्ट वे टू डू द क्वेश्चन. c के कोऑर्डिनेट c कॉमा c. तो अभी जिस तरह से मैंने लिखा था ऊपर स्टेयर मेथड से, उसी पे लिखूंगा. 2a 3a 3b 2b c c, और जो फर्स्ट लिखा था उसको फिर से लिख लिया 2a 3. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज इक्वल टू 1 by 2a into ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2a into 2b that is 4ab, then minus 3b into 3a that is 9ab, ठीक है, ये फर्स्ट. देन प्लस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो that is 3bc 3bc and minus 2bc, फिर प्लस इनको मल्टीप्लाई करो तो दिस इज 3ac minus 2ac. तुम डिटरमिनेंट से भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा एंड ये मॉड्यूलस होगा, ठीक है. ये एरिया 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कोलिनियर है पॉइंट्स. 4ab minus 9ab is minus 5ab, then this is plus bc and this is plus ac, ठीक है. 2 भी चले गए उधर, this is equal to 0. ओके, तो अब यहाँ से मुझे मिल रहा है that
5ab इज इक्वल टू bc प्लस ac। तो अब हम इसमें क्या कर देते हैं कि आई थिंक abc से डिवाइड कर देते हैं इसको। सो इफ आई डिवाइड दिस बाय abc मुझे क्या मिलेगा 5/c, ठीक है। दिस इज कमिंग आफ्टर डिवाइडिंग बाय abc। दिस इज इक्वल टू b/a, सॉरी abc से डिवाइड किया तो b से कैंसिल हो गया, बचा a एंड प्लस 1/b, ठीक है ना। इसी को मैं आगे लिख सकता हूँ कि देखो c/5 लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 5 को नीचे लिख लिया, दिस इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 और यहाँ था, नो प्रॉब्लम, ठीक है, सब कुछ सेम है, 2 तो कैंसिल हो जाएगा। इसको देखते हुए मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय लुकिंग एट दिस रिलेशन आई कैन से दैट, देखो समझने की कोशिश करेंगे अपन तो हमें पता चलेगा कि अगर मैंने बोला कि एक्स वाई जेड HP में, ठीक है, तो आई कैन से 1/x 1/y एंड 1/z AP में होंगे क्योंकि HP का रेसिप्रोकल इज AP, ठीक है। तो अगर ये AP में है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो तुम यहाँ से कि ये इससे इसको रिलेट करो कि एक्स वाई जेड अगर HP में है तो ये रिलेशन वैलिड होना चाहिए। उसी तरह का मुझे कुछ मिला है तो मेरे लिए ये x, ये y और ये z हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट देयरफॉर a then 2c/5 and b are in HP। ये मेरा आंसर है, होपफुली अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़े, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose slope is 3 and which cuts off an intercept 3 from the positive x axis। ओके, तो अगर समझाना है क्वेश्चन को तो ये बोल रहा है कि इक्वेशन whose slope is 3, तो पॉजिटिव स्लोप है, which cuts off an intercept from the positive axis। तो ये इस तरह की लाइन होगी, ठीक है, इस तरह की लाइन है जहां पे मुझे ये पता है कि ये डिस्टेंस 3 के बराबर है, हाँ, एंड स्लोप इज 5, दैट इज m इज इक्वल टू 3। तो अगर ये 3 यूनिट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो ये डिस्टेंस बेसिकली 3 था। तो आई नो दैट दिस पॉइंट इज 3,0। सो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, स्लोप और पॉइंट पता है तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस x1। Now y1 x1 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, सो y माइनस 0, y1 इज 0 फॉर दिस, स्लोप 3 है इनटू x माइनस 3, तो दिस इज y इज इक्वल टू 3x माइनस 9। आंसर as easy as this। Then question number 10, if the coordinates of the point ABC are respectively and D be the middle point of BC, then the equation of perpendicular drawn from B to line AD। okay, पहले फिगर को समझ लो तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये A, B एंड C, A का कोऑर्डिनेट -1,5, B कोऑर्डिनेट इज 0,0, C कोऑर्डिनेट इज 2,2, D be the middle point of BC, ठीक है, यहाँ D है, मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं। उसने क्या बोला है कि देन द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम B टू लाइन AD, तो पहले AD को ज्वाइन कर लो, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, इसका इक्वेशन निकालना है मुझे, इसको E बोल दिया, B लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले D मिड पॉइंट है तो D के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0 + 2/2, x1 + x2/2 and y1 + y2/2, that is equal to 1,1, तो ये आ गया 1,1। अब AD का इक्वेशन पता चल जाएगा, फिर मैं B का लिख सकता हूँ, तो AD का इक्वेशन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि AD लाइन पे 2 पॉइंट पता है, एक A और एक D, y माइनस y1, ठीक है, तो y1 किसको ले लिया, y1 इसको ले लिया 1,1 -1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 5 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, सो दैट इज -1, -1 इनटू x माइनस x1, तो ये 1 आ जाएगा, x माइनस x1, हमने इसको x1 y1 बोला था,
So this is y minus 1 is equals to 4 upon minus 2 into x minus 1. This is 2. तो यहाँ से आ जाएगा y minus 1 is equals to, यहाँ माइनस साइन है, ध्यान रखना माइनस 2 है, तो ये माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 2. दिस इम्प्लाइज 2x प्लस y इज इक्वल टू 3. ये किसका इक्वेशन आया? दिस इज इक्वेशन ऑफ AD. अच्छा, अब अगर AD का इक्वेशन आ गया तो B का इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि B इज परपेंडिकुलर टू AD. तो अगर एक लाइन पता है उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखना है, क्या करते हैं कि जो x और y का कोएफिशिएंट है उसको इंटरचेंज कर लो. तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1x, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा y का कोएफिशिएंट 2, और बीच में माइनस साइन लगा दो एंड प्लस सम कांस्टेंट लैम्डा. B का इक्वेशन. अब ये लैम्डा कैसे फाइंड आउट करेंगे? लैम्डा इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि ये जो बी लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है ना, दैट इज पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करा दो. सो सब्स्टिट्यूटिंग 0, 0, यहाँ से क्या मिलेगा? लैम्डा इक्वल टू 0. देयरफॉर बी का इक्वेशन आ गया x माइनस 2y इक्वल टू 0. दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर. और नहीं तो कैसे कर सकते हो कि b का स्लोप निकालो और AD का स्लोप निकालो. इन द सेंस B का स्लोप निकालने के लिए तुम्हें AD का स्लोप पता है, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो ऑल्टरनेटिवली. जिनको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आता वैसे पता होना चाहिए, m into AD, MAD that is slope of AD into slope of B, this is equals to -1. तो यहाँ से तुम्हें slope of B मिल जाएगा, that is -1 upon slope of AD. स्लोप आ गया लाइन का, और एक पॉइंट ऑलरेडी पता है, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख सकते हो. थोड़ा सा 2-3-4 स्टेप ज्यादा लगेगा टाइम बचाने के लिए, हमने इस तरह से किया. क्वेश्चन नंबर 11. If the middle point of the sides are, then the equation of the side AB. भी तो किया था, सेम क्वेश्चन आ गया. तो A का कोऑर्डिनेट पता है -1, 5. थिंक हमने सेम किया था क्या अभी? एनीवेज मैं गलत क्वेश्चन देख रहा हूँ. मुझे कौन सा करना है अभी? 11. तो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं ना ट्रायंगल के. सो ठीक है, BC का मिड पॉइंट कितना दे रखा है? 1, 3. ठीक है, देन CA का मिड पॉइंट दे रखा है 5, 7. ओके, एंड AB का मिड पॉइंट कितना दे रखा है? -5, 7. ठीक है, निकालना है इक्वेशन ऑफ साइड AB. तो इक्वेशन ऑफ साइड AB के लिए मुझे क्या चाहिए? एटलीस्ट या तो AB का स्लोप पता चल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं, या तो एक और पॉइंट पता चल जाए. एक पॉइंट तो ऑलरेडी पता है, तो हम क्या करते हैं? पॉइंट निकाल लेते हैं. अभी हमने निकाला भी थोड़ी देर पहले. तो x1 y1, इसको बोल दिया x2 y2, इसको बोल दिया x3 y3. ठीक है, चलो. सो फिर भाई हम शुरू हो गए. ये -5, 7 इज मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो हम लिख सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2, x कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं, बाय 2 इज इक्वल टू -5. देन आई कैन राइट x2 प्लस x3, ऊपर एक क्वेश्चन में किया था, दैट इज इक्वल टू 1, एंड x1 प्लस x3 बाय 2, दिस इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है? x1 plus x2 is equals to -10. This is giving me x2 plus x3 is equals to 2, and this is giving me x1 plus x3 is equals to 10. इसको 1 बोल दो, से 2, this is 3. तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 plus 2 plus 3 किसके इक्वल मिलेगा? 2 times of x1 plus x2 plus x3. This is equal to 10 minus 10 0, तो 2 बचा. So finally I get x1 plus x2 plus x3 2 1. ये 4 बोल दिया मैंने, और 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा? x3 की वैल्यू मिल जाएगी, that has to be equal to 11. 1 minus minus plus 10, तो that is 11. फिर तुम करो 4 minus 2, क्या मिलेगा? x1 मिलेगा, that has to be
इक्वल टू -1 और फिर करो 4 - 3, क्या मिलेगा? x2 मिलेगा -9। ठीक है, 1 - 10 इज -1। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसी तरह से। सो लिख सकते हैं y1 + y2/2 यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लो मैं। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 7 है तो यहाँ से आ जाएगा y1 + y2 = 14। फिर क्या आएगा y2 + y3 y2 + y3/2 this is equal to 3। this implies y2 + y3 is equals to 6 and y1 + y3/2 this is equal to 7। तो this gives me y1 + y3 is equals to 14। आगे इसको नाम दे दिया 5 6 7। 5 + 6 + 7 क्या देगा मुझे? This is going to give me 2 times of y1 + y2 + y3। This is equal कितना आ जाएगा? 14 + 14 is 28 + 6 is 34। ये आ जाएगा y1 + y2 + y3 is equals to 17। और से इसको इक्वेशन 8 बोल दिया मैंने। मुझे सिर्फ x1 y1 चाहिए, ठीक है, बाकी की जरूरत नहीं है बेसिकली। अगर x1 y1 पता चल गया तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिकॉज यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म मैं लिख सकता हूँ AB का इक्वेशन। तो मैं सिर्फ y1 कैलकुलेट करूंगा, बाकी सब भूल जाऊंगा। तो 8 में से किसको सबट्रैक्ट करूँ? x1 के लिए 6 को करना पड़ेगा। तो दिस विल इम्प्लाई y1 is equals to 17 - 6 is 11। तो देयरफॉर a का कोऑर्डिनेट इज x1 कितना था? -1, y1 is 11। ओके, तो अब मुझे AB लाइन पे ये एक पॉइंट पता है, ये दूसरा पॉइंट पता चल गया। तो वो पॉइंट कितना था? -5, 7। तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन बन गई y - 7, इसको x1 y1 ले लिया मैंने। सो 11 - 7 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -1 and +5 into x -+5। So this is y - 7 is equals to 4 upon 4 into x + 5। So the required equation आ जाएगी 4 से 4 गया x - y, ठीक है, x - y + 12 equal to 0। चेक कर लो, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ AB, दैट शुड बी द आंसर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Question number 12 says, if the coordinates of the vertices of a triangle respectively, then the equation of the median through C, ठीक है, A, B and C। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो फिर से पूरी कैलकुलेशन करनी। फिर B 5, नहीं -3, -9। ओके, C का कोऑर्डिनेट कितना है? 5, -8। 5, -8। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू C। तो मीडियन का मतलब लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो ये जो पॉइंट होगा, लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट D। D इज मिड पॉइंट ऑफ A। इस लाइन CD का इक्वेशन लिखना है। दिस इज द मीडियन थ्रू वर्टेक्स C। मीडियन वो लाइन होती है जो वर्टेक्स से निकल के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो सबसे पहले D के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, -1 - 3/2 6 - 9/2, राइट, ठीक है। देन दिस इज D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2 - 4/2 is -2 and 6 - 9 is -3/2। ओके, D का कोऑर्डिनेट आ गया। CD का इक्वेशन लिख लो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। y - y1 तो ले लेते हैं 3/2। ये इसको y1 लिया तो +3/2 हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ माइनस, इज इक्वल्स टू y2 - y, तो -8 माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय x2 - x1 5
minus minus plus 2 into x minus minus plus 2. So this is 2y plus 3 by 2 is equals to, यहाँ आ जाएगा 8 to the 16, 3 minus 16 is minus 13 by 5 into 2 is 5 plus 2 is 7 and 7 and 2, so 2 into 7 into x plus 2. Simplify करो, 2 से 2 हो गया. This is 14y plus 21 is equals to minus 13x minus 26. Finally I get 13x plus 14y और ये आ जाएगा 47. This is equal to 0. ये आ गया हमारा required answer. Question number 12 का. Then let's go to question number 31. The equation of the line joining the origin to the point. This is very easy. Equation of line joining the origin 0, 0 and to the point minus 4, 5. So 2 point form या तो slope लिख लो. So y minus 0 लिख लेते हैं. x2 minus x1 5 minus 0 upon minus 4 minus 0. 2 point form से लिख रहा हूँ मैं x minus 0. This is y is equals to minus 5 by 4x. The equation would be 5x plus 4y equal to 0. 2 point form से लिखा हुआ equation. Answer. 14th question. The equation of the line which cuts off an intercept of 3 units on OX and intercept of minus 2 unit on OY. So हमें पता है intercept form में equation कैसे लिखते हैं. That is x upon a plus y upon b equal to 1. This is this intercept form. अब यहाँ पे दे रखा है x intercept कितना दिख रहा है. X intercept is 3 units on OX बोला है उसने. So x upon 3 and intercept of minus 2. So y upon minus 2 is equal to 1. So यहाँ से equation आ जाएगा x upon 3 minus y upon 2 is equals to 1. I think इसी फॉर्म में ऑप्शन में दे रखा है. So I will leave here itself. This is the answer. Then question number 15. 15 में क्या लिखा हुआ है. Equation of the line passing through 1, 2 and parallel to the line. तो equation क्या given है 3x minus 5 and passing through 1, 2. इसको parallel है. So equation of parallel line कैसे लिखता है. ठीक है, अगर मुझे पता है कि ax plus by plus c इसको parallel line की equation लिखनी है तो that would be ax plus by plus some k equal to 0. ठीक है, इस तरह से पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखी जाती है यूजिंग सेम आइडिया. जो इसको पैरेलल लाइन होगी दैट विल बी y is equals to 3x plus some constant c बोल दिया. नाउ दिस लाइन जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है वो 1, 2 से पास हो रही है. सो सेटिस्फाई 1, 2 is equals to 3 into 1 plus c. This implies c is equals to minus 1. Therefore required equation is y is equals to 3x minus 1. Answer. So fully समझ में आ रहा है. Then question number 16. 16 में क्या लिखा हुआ है. If the equation of the line passing through 4, minus 6 and making an angle of 45 degree with positive x-axis. तो जैसे positive x-axis के साथ एंगल दे दिया लाइन का तो समझ में आ जाना चाहिए कि that is nothing but inclination. Positive x-axis के साथ 45 डिग्री. So लाइन का स्लोप कितना हो गया. That should be equal to tan 45 degree, which is nothing but 1. और लाइन किस पास से पॉइंट हो रही है 4, minus 6. ठीक है, डोंट गो बैक फिगर कि 4, minus 6 ऊपर कैसे हो. तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए दिखा दिया. सो y minus y1 that has to be minus 6 is equals to slope 1 into x minus 4. तो मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया है that is y minus y1 is equals to m into x minus x1. Using this y1 की वैल्यू 6, so y plus 6 is equals to x minus 4. This implies x minus y or minus 10 equal to 0. This is the required answer.
देन क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है? The equation of the line passing through A, B and parallel to the line. तो जो गिवन लाइन है that is x upon A plus y upon B is equals to 1. तो अभी हमने समझा था कि किसी भी पैरेलल लाइन की इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, x का कोएफिशिएंट सेम, y का कोएफिशिएंट सेम as it is equal to some k. Now this passes through which point? Passes through A, B. तो a, b से पास हो रहा है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, सो a अपॉन a प्लस b अपॉन b इज इक्वल टू k. तो यहाँ से a कैंसिल, b भी कैंसिल, k इक्वल टू 2. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन ऑफ द आर हैंड एट 4 o'clock. ठीक है. तो अगर क्लॉक को देखोगे तो ये क्लॉक बना लिया मैंने. ठीक है. 4 o'clock पूछा है तो इसके क्लॉक के सेंटर को मैंने ओरिजिन बोल दिया. आवर हैंड पूछा है एट 4 o'clock. तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, ठीक है, दिस इज 3 पॉइंट. ठीक है. ये 12 वाला पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है. ये 12 o'clock. This is 3 o'clock, this is 6 o'clock, this is 9 o'clock, 1 o'clock and 2 o'clock. तो अगर इन एंगल्स को देखूं मैं, कौन से एंगल्स? ये एंगल्स, ये और ये, तो टोटल ये 90 है, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया तो 30 ईच हो जाएगा. सो 4 o'clock पे जो एंगल बनेगा ये आवर हैंड में भी पिंक में बना है. दिस इज 4 o'clock, है ना. ये तो आवर हैंड इज दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बट इन द एंटी क्लॉक इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मुझे ये जो पिंक में लाइन बना रखी है इसका इक्वेशन लिखना. नो प्रॉब्लम. लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू mx टाइप्स. अब m क्या होगा? m विल बी इक्वल टू tan थीटा. थीटा क्या होगा? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन दैट इज आवर हैंड with respect to positive direction of x axis. तो यहाँ पे इंक्लिनेशन को देखोगे तो या तो तुम -30 लिख लो since this 30 degree is in the clockwise direction. तो मैंने लिख लिया tan of -30. या तो फिर तुम लिखो tan of ये कंप्लीट एंगल जो यहाँ से यहाँ तक आएगा 330. सेम थिंग. सो m is equals to tan of -30 is minus tan 30 which is equals to -1 by root 3. So the required equation is y is equals to -x by root 3. And that is nothing but x plus root 3y, sorry, x plus root 3y is equal to 0. This is the answer. Question number 19. क्या लिखा है 19 में? Equation of a straight line on which length of perpendicular from origin is 4 units and the line makes an angle of 120 degree with the positive x-axis. Okay. तो हाँ, इसमें हम उसका यूज कर लेंगे. किसका? नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. तो पहले फिगर को बना के दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है. लाइंस को देखोगे. Straight line on which length of perpendicular on which 4 units and the line makes an angle of 120 degree with the x-axis. तो with x-axis बोला है तो positive direction of x-axis. तो ये एक लाइन हो सकती है. This is angle 120 degree. और इस तरह से भी लाइन हो सकती है. Parallel होंगी basically lines and that is again 120. ठीक है. तो 120 डिग्री ये है and क्या दे रखा है? Length of perpendicular from origin. That is this. Which is equal to how much? 4 units. ये 4 है और यहाँ से ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 4. इन लाइंस का इक्वेशन लिखना है. तो नॉर्मल फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखेंगे तो दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. नाउ p here is equal to 4. अल्फा नहीं पता तो दो लाइंस दिख रही है, दो आंसर्स होंगे इसके. अभी दो इक्वेशंस आएंगी. मतलब अब अल्फा क्या होता है? Remember, alpha is the angle made with the positive x-axis by the length of perpendicular. मतलब ये perpendicular. तो this is alpha. इस लाइन के लिए.
और इस लाइन के लिए अल्फा कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ये वाला एंगल, ठीक है। सो बी केयरफुल, ये अल्फा, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, ठीक है। 2 अल्फा लेंगे। अब अगर तुम अल्फा 1 को देखो तो दिस इज 120, तो ये कितना है 60। तो राइट एंगल ट्रायंगल से मुझे पता चल रहा है कि अल्फा 1 कितना हो जाएगा, अल्फा 1 इज इक्वल 30 डिग्री। और अल्फा 2 को देखोगे तो वो भी आ जाएगा, कैसे, ये एंगल पता है तो सिंस दिस इज 120 दिस इज 60, तो अल्फा 2 हो जाएगा ये 30 प्लस 180, अल्फा 2 इज 210 डिग्री, ठीक है। सो दिस हैज टू बी डन कि ये अल्फा अप्रोप्रिएटली कैलकुलेट होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 4 एंड x cos 210 डिग्रीज प्लस ये डिग्रीज है y sin 210 degrees is equals to 4. So x cos 30 root 3 by 2. So this is root 3x plus y sin 30, तो y by 2 is equals to 2 इधर चले गया 8 आया and 210, तो 210 कितना होता है, cos 210 is nothing but cos 180 plus 30. Cos 180 plus theta is minus cos theta, so this is minus cos 30 degree. Similarly minus y sin 30 degree is equal to 4. तो एक तो आंसर यही आ गया, दूसरा यहाँ से माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 8. सो वन आंसर इज दिस, अनदर इज दिस, दो आंसर आएंगे, चेक कर लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20. What does it say? The equation of the straight line passing through the point this and perpendicular to the line. ठीक है, तो किस लाइन को परपेंडिकुलर है, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा, दिस इज इक्वल टू a. तो इसको परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, दैट हैज टू बी x और y के जो कोएफिशिएंट लिखे यहाँ पे वो इंटरचेंज, तो यहाँ आ जाएगा cosec थीटा इंटू एक्स और यहाँ पे आएगा वाई सेक थीटा और यहाँ पे एक माइनस है, दिस इज इक्वल टू सम के बोल दिया मैंने। अब के कहाँ से आएगा, आई नो दैट दिस लाइन जो परपेंडिकुलर है इसको, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर है, किस कौन से पास हो रहा है, ए कॉस क्यूब थीटा एंड ए साइन क्यूब थीटा। सो इसमें सेटिस्फाई करा दो टू गेट द वैल्यू ऑफ के, सो दिस इंप्लाइज कोसेक थीटा इंटू ए कितना है, सॉरी एक्स कितना है, ए कॉस क्यूब थीटा, ए कॉस क्यूब थीटा माइनस वाई कितना है, ए साइन क्यूब थीटा, ए साइन क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा, दिस इज इक्वल टू के। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सो दिस इज व्हाट, कोसेक को साइन लिख सकते हैं, सो दिस इज ए कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा एंड माइनस a sin cube theta upon cos theta is equal to k, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, फाइनली ऑप्शंस में देखेंगे तो सब sin थीटा cos थीटा में चाहिए, कोई बात नहीं, तो एलसीएम ले लेंगे तो k will be equal to a times of cos to the power of 4 theta minus sin to the power of 4 theta whole divided by sin theta cos theta, ये आ गया। देन यहाँ से मुझे मिलेगा k इज इक्वल टू a cos टू द पावर ऑफ 4 माइनस sin टू द पावर ऑफ 4, इसको लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। और अगर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आता है आपको तो ये आ जाएगा k इक्वल टू a इंटू, ये तो 1 हो गया, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इज cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। अब इक्वेशन में चले जाओ, यहाँ k सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x इनटू देयरफॉर x इनटू कोसेक थीटा लिखा पड़ा, ठीक है, माइनस y इनटू सेक थीटा इज इक्वल टू k, k की वैल्यू हमने निकाली a cos 2 थीटा अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लोगे तो दिस इज x अपॉन साइन थीटा माइनस y अपॉन कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू a cos 2 थीटा divided by sin theta into cos theta. So this implies x cos theta minus y sin theta is equals to a times of cos 2 theta. This should be the answer. थोड़ा सा कैलकुलेशन should not be difficult. ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।